There is no justification for breaking the law, for attacking the police, for assaulting police personnel. Let's be clear. Just as there is no excuse for rogue policing, for being trigger happy. I want you to look closely at the pictures we are playing out from Bihar and in Delhi. Pellet guns were used in Delhi. People have sustained injuries. In Bihar, assault rifle was out. AK-47 rifles were used for crowd control. Now, this is used for terrorists and militia. These rifles are meant for war. When police carry weapons of war to handle protesters, viewers, the line between law and lethal force vanishes. It just goes away. Rahul Gandhi has used this to call it a proof of murderous system. The BJP calls it fake news and has demanded an apology from Rahul Gandhi. But the images speak louder than both BJP and Congress. The question is very simply this: why are assault rifles and pellet guns being used where they do not belong? So let's open this up, and we have Ravi Shankar Ravi, spokesperson of the RJD, joining the broadcast. Ravi Shankar ji, तेजस्वी यादव काफी इसमें ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं AK-47 का इस्तेमाल हुआ. कब पता चला आप लोगों को ऐसा हुआ है? ये तो आप भी दिखा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है. और ये प्रणेश जी, ये परकोलेट डाउन हुआ है. व्हाट हैज हैपेंड एट जंतर मंतर ड्यूरिंग द मार्च, संसद मार्च, that has percolated down and emboldened the Bihar police under the Chief Minister Samrat Chaudhary to fire. Here आपने देखा pellet gun, electric lathi, electric baton, nailed batons, all those have been used. So अगर pellet gun दिल्ली में इस्तेमाल होगा तो बिहार पुलिस, और बिहार पुलिस तो अनप्रोफेशनल पुलिस है. आपको मैं 2-3 घटनाएं एकदम, मुझे 30 सेकंड दीजिए. जब नहीं, अनप्रोफेशनल पुलिस तो है, इसीलिए तो सरकार आपकी बदली गई ताकि वो प्रोफेशनल कर सके उसको. इतने दिन से आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं था पुलिसिंग के बारे में. इतना लंबा सरकार चलाया सर आपकी पार्टी ने, पुलिस को ही प्रोफेशनल बना देते. So let's not go there. Sanju Verma, what explains the use of, I'm sure you've heard what Member of Parliament Sambit Patra has said. He says Rahul Gandhi is lying. Rahul Gandhi should apologize. It's on camera. The policeman is firing an assault rifle, AK-47. You know, Pranesh, I want to make two things very clear. There has been a whole lot of discussion, A, on pellet guns being used, B, on that AK-47 rifle and that video which has gone viral. First, on pellet guns, there is now in public domain report that pellet gun was used against one person, Sahil. Even against one person, it should not have been used. So I'm not trying to take the moral high ground here, but today the CRPF and the Rapid Action Force, they have set up internal review committees. This is a news that happened just about 2 hours back. And they have said that both in the case of the pellet gun incident and in the case of the Bihar incident, where the AK-47 rifle was pointed at but not used, the necessary action will be taken, and that particular policeman pointing AK-47 rifle, he has been suspended. I'm saying this on your show. So it's not as if police excesses will be tolerated, but my simple logic is this: if you want to talk about police excesses in Bihar, talk about police excesses in Kerala also, in Telangana also, in Karnataka also. No, of course you're right, but that can't be an excuse for anyone to brandish AK-47, Sanju Verma. Vivek Srivastava. Just one line, Vivek. Pranesh, you know this, that before taking any assault rifle, particularly in AK-47, there are protocols including a diary entry to be made. You know this and everybody knows this. How is it? Are you telling me that the police were so incompetent that they didn't know a weapon was... We've been saying that the senior police officials must be made to answer for this. Vivek Srivastava. It was all planned. The Delhi police had instructions from the Home Ministry. एक डीसीपी आता है, एक लड़की को थप्पड़े मारता है, अभी उसका ट्रांसफर करा नॉर्थ दिल्ली से हटा करके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली. Another fellow comes, is putting a stick into the private parts of a woman. There were people, policemen जिनको claim किया जा रहा है in civil dress, helmet लगा के, मुंह छुपा के, लाठी लेके, RSS के लोग थे, कौन थे, कोई नहीं जानता. पुलिस वाले उनको encourage कर रहे थे. They were not stopped, and it is happening across the nation. You had pellet guns. आप करने क्या आए थे? बच्चों का मर्डर करने आए थे क्या? ये एकदम सही सवाल पूछ रहे हैं आप, विवेक श्रीवास्तव. पहली बार आप सही सवाल पूछ रहे हैं. मतलब आई एम सरप्राइज्ड.
अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे। पूछूं? पूछिए सर। आप वो व्यक्ति हैं और आप उस पार्टी से आते हैं, उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं जो हिडमा जैसे ड्रेडेड माओइस्ट को सेलिब्रेट करता है। हिडमा क्या गुलाब का फूल देते थे लोगों को? हम तो सीजेपी को सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। नहीं, हिडमा क्या करता था? हिडमा आपकी क्रिएशन था। हिडमा गलत था लेकिन आपकी क्रिएशन था। हिडमा गलत था लेकिन हम फिर भी पोस्टर लगाएंगे। तुम जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। क्रिमिनल्स अगर क्रिएट होते हैं, क्रिमिनल्स क्रिएट होना किसी भी सभ्य समाज में उस समय समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज की जिम्मेदारी है। ओके, सो इफ यू पिक अप द गन द सोसाइटी मस्ट आंसर। वेरी गुड। हर्षवर्धन जी, आप भी उठा लीजिए बंदूक। आपको न्याय नहीं मिल रहा है, विवेक श्रीवास्तव आपके साथ रहेंगे। देखिए, ये बड़ा सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये कहना कि हिडमा जो था वो क्रिएशन किसका था। तो फिर तो क्रिएशन जितना ये कह रहे हैं वो सबका सब कांग्रेस की सरकारों का था। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ, क्योंकि सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी एक समय में। जब नक्सलवाद शुरू हुआ इस देश में तो उसको तो यही कहेंगे, और वो खत्म भी नहीं कर पाए। ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र, जिसको कहें कि कई बार तो ओवर डेमोक्रेसी दिखता है, और फिर भी आप ये कहें कि किसी वजह से ये तैयार हुआ हो, फिर तो कोई भी अपराधी ही कह सकता है। क्या भारत में किसी को चुनाव लड़कर जीतने से रोक है? बिहार में अगर दूसरी पार्टियां जीत सकती है तो वहां नक्सली कैसे पैदा हो गए? कैसे नक्सलियों के साथ वहां की सत्ताधारी पार्टी का तत्कालीन समय में गठजोड़ हो गया था? ये इस सवाल का जवाब कोई देगा या नहीं देगा? या टेलीविजन डिबेट में आप अचानक एकेडमिक होने लगेंगे? विवेक श्रीवास्तव जी, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि भले आप कम्युनिस्ट हैं लेकिन फिर भी अब करना बंद कर देना चाहिए। वो जो आप लोगों का था ना कि तिरुपति से पशुपति लाल गलियारा बना देंगे, पूरा कब्जा कर लेंगे, सब खत्म कर देंगे, उससे अब बाहर आइए। इस देश के लोग इस हिंसक खूनी विचार को बर्दाश्त नहीं करते। एक लाइन की बात है। और नक्सल मुक्त हुआ तो किसका जीवन आसान हुआ? आदिवासियों का आसान हुआ। नहीं, मानेंगे नहीं विवेक श्रीवास्तव। आउटरीच जो कर रहे हैं AK-47 पे, बिल्कुल सही सवाल पूछा उन्होंने। ये बिल्कुल इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन ये उन लोगों से अच्छा नहीं लगता है जो हिडमा जैसे लोगों को ग्लोरीफाइड करते हैं। तारिक भाई, आपने शुरू ही किया था कि AK-47 और जो पैलेट गन है, गन टारगेटिंग वन पर्सन, एक आदमी को टारगेट करके पैलेट गन चलाई गई थी। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने शायद यही बात कही। अच्छा, पैलेट गन में छोटे छोटे छर्रे होते हैं जो 50 से 500 हो जाते हैं और जगह पे फैल जाते हैं। कैसे एक आदमी को टारगेट करके मार दिया? इतनी अनट्रेन्ड है फोर्स। क्या समझते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? भाई साहब बताइए, किसने कहा था? अमित शाह साहब ने कहा था कि पैलेट गन मारो, AK-47 चलाओ, बम मारो, तोप मारो, जरूरत पड़े तो एटॉमिक बम मार देना, लेकिन बच्चों के ऊपर बर्बरता करो। ये ऑर्डर अमित शाह साहब ने दिया था। ये संजू वर्मा जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप ये बताइएगा कार सेवकों पे गोली चलाने का ये ऑर्डर किसने दिया था, वो आप उसकी तैयारी कीजिए। संजू वर्मा। Pranesh, Vivek Srivastava has asked some questions. What I fail to understand is Vivek Srivastava has no fear in questioning the BJP, and I'm glad about that. Why can't he condemn the Congress party? VD Satishan, the chief minister, is the de facto home minister. Students from the SFI and ISA, left-wing student organizations, they were tear-gassed. They were water cannoned by the Kerala police. Vivek Srivastava, नीट के बच्चों के लिए बात करते हैं, बढ़िया। आप अपने खुद के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनके खिलाफ पुलिस ने बर्बरता से एक्शन लिया, व्हाई कांट यू स्पीक अगेंस्ट द बार्बरिज्म ऑफ केरला पुलिस? विवेक श्रीवास्तव, कब आपके मुंह में दही जम जाता है? व्हाई द सिलेक्टिव आउटरीच? विल यू कंडेम द कांग्रेस गवर्नमेंट इन केरला एंड द एक्शन टेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स? The use of the use of AK-47 can have no justification, Vivek Srivastava. But having said that, you must at least, on as a matter of principle, condemn all police excesses. वो आपकी गवर्नमेंट कर रही है, एलाइज कर रहे हैं। सर, मैं कंडेम कर सकता हूं, इनका थोड़ी ना मुंह की कंडेम करेगी। इनका क्या लेना है? तो ये तो बच्चों को मारने के लिए पहुंच गए थे वहां पे। द पुलिस जिस तरह के आर्म्स एंड एम्युनिशन को लेकर के पहुंची है वहां पर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर नेशनल कैपिटल पे। अब हर्षवर्धन जी को डांस नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं? वो सारी डांस पार्टीज के खिलाफ है। आई कांट हेल्प इट ना। आप थोड़ा डांस वांस सीखिए, थोड़ा लाइट हार्टेड बनिए। नहीं, डांस, बच्चों ने गालियां दी, सुनिए। उनको वो सिर्फ डांस ऑफ डेमोक्रेसी में मानते हैं। आप लोग जो दूसरा डांस कर रहे हैं,
इसमें प्रॉब्लम है। हर्षवर्धन जी आप जवाब दीजिएगा। मैं बस ये याद दिलाना चाहता हूं इनको कि 14 लोगों की जान गई थी नंदीग्राम में, उस समय सरकार की लेफ्ट वहां पे, लेकिन विवेक श्रीवास्तव उस पर कुछ नहीं कहेंगे। आप बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं प्रणेश भाई, एक कि ये सही कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझे बहुत अच्छा डांस नहीं आता, लेकिन मैं इतना भी पप्पू नहीं कि पप्पू कांट डांस वाला, तो थोड़ा बहुत आता है और मुझे किसी के डांस करने से कोई एतराज नहीं। मैं बहुत, मेरा ये मानना है कि ठीक है, मुझको जो नहीं भी आए, मुझको बहुत अच्छा डांस नहीं आता है, लेकिन विवेक जी कोई बढ़िया पार्टी रखेंगे, हम लोग को बुलाएंगे तो हम लोग को खुश होकर जितना आता है उतना हाथ पैर चलाएंगे। सवाल इसका कतई नहीं है, इसके बिल्कुल। Okay, but in the end, I think all of us agree on the panel that this is an example of rogue policing, AK-47, etc. Pellet guns is not right. Anyone who's authorized this and people who've used this must be punished. Whatever is prescribed under the law, that punishment must be meted out to send an example, to send a message that this is not on. You can't have a situation where for crowd control the police takes out an AK-47, which is an assault rifle. I thank all of you for joining us. The news hour coming up on the other side.